अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं गांव के एक ज़मींदार घराने के सरबरा और उनकी फैमिली से। असल च ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਟਿੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਬਾਬ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾ ਖਵਾ ਛੱਡਣੀ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੜੀ ਪਈ। ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਵੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੜੀ ਏ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਨਿਕਲੀ ਕੈਸੀ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੀ 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 और अपने बच्चों नाल सीधे मुंह गल भी नहीं करता तू। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਾ ਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਭਖੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ? ਉਂਝ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂ ਕਿ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭੇਜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀਦ ਹੋਈ ਗਏ। देख भरा वड्या, तन्नू कितनी बारी किया है कि मेरे बच्चों का नाम पुठा सीधा ना लिया कर। मेरे पुत्र का नाम चौधरी परवेज है और वो तो इत्थे ही रहिंदे ने, हर 14-15 दिनों के बाद इत्थे आ भी जांदे ने। तू अपने जन्म दी सुना, कदों आ रहा तेरा तीफा? ਓਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਾ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੀਫਾ ਵੀ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम ਆ जी। ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। जिंदा रहे मेरा बच्चा, सलामत रहे, खुश रहे, मैं सदके में कुर्बान। अम्मी बूची कहाँ है? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा। क्या बात है जनाब। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਕਾ ਪੀਣ ਡੇ ਸਨ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਕਾ ਪੀਣ ਡੇ। ਬੜੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੱਕਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माँ जी, इसीलिए तो परवेज आपको कहते हैं कि आप हमारे पास शहर आ जाएं। मैं खुद आपकी खिदमत करूंगी, एक काम नहीं करने दूंगी मैं आपको। मैं सदके अपनी बच्ची दे मैं कुर्बान। ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਨੋਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਹ ਪਲੋਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਲੈ ਜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रही हो वे। रहने दे माँ जी, अब्बा जी को तो हमारा प्यार भी एक दिखावा ही लगता है। इनको क्या पता हो कि परवेज जब भी ऑफिस जाते हैं तो एक ही बात करते हैं कि अब्बा जी की दुआओं के बगैर ऑफिस जाने को दिल नहीं करता। अब्बू की दुआओं के बगैर जब मैं दफ्तर जाता हूँ तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि हुण कुत्ता गड्डी च वज्जा, हुण कुत्ता गड्डी च वज्जा। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਯਾਰਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ। ਬਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਡਏ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁ ਬਹੁ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ, ਖਲੋਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਠੀ ਲਵੋ, ਘਰ ਲਵੋ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਜੀ? मैं ठीक। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਭਾਪੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਗੇ? ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੋਟ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਭਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਯਾਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 16.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸ ਸੁਗਾਤਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਯਾਦ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਐ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੌਠਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, ये आजकल के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है। हर जवान शख्स गांव से शहर जाना चाहता है। बिल्कुल सर। भाई पाकिस्तान का जरिया माशी एग्रीकल्चर को कहा जाता था और कहा जाता है, मगर इसमें कुछ कसूर हुकूमत का भी है कि हुकूमत ने कुछ बुनियादी सहूलियात जैसे कि तालीम, सेहत या नौकरियों के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इन देहातों में, गांव में नहीं दी, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर शहरों का रुख करते हैं। बिल्कुल सही। ओया जी बात आपकी ठीक है, बुनियादी सहूलतें नहीं मिली गांव को, मगर ये बच्चे जो है ना जी, ये हाडरामी की तरफ जा रहे हैं। ये अब भागते हैं खेती बाड़ी से। शहरों में इनको सहूलतें मिल जाती हैं, नवाबों की तरह रहते हैं, गाँव की जमीनें बेच बूझ के उधरे ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿरना, मौजें करना, उधर बिल्डिंगें बना के किरायों पे दी हुई हैं, आराम से बैठ के किराए खा रहे हैं। वो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। खेती बाड़ी जो है, ये जो हमारी जमीन होती है, ये तो हमारी माँ है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं अपनी जमीन बेच दें। वाह 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 ताया जी, क्या फजूल गल की जी। ये तो पिंडों जमीना बेच के जाना तो शहर भी जमीन ते ही रहना है। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ।
ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ, ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਡ ਲਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਹੀ ਗੱਡੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਪੇਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। अम्मी आपको याद है जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो हम सब की कैसे दौड़ने लगी थी शहर की तरफ। यही अगर हम सब शहर में होते तो ये टेंशनें तो ना होती। मान ले मेरी बात अम्मी, बेचे जमीनें और चले शहर। ना भाभी ना, हम नहीं जाना शहर, हम सारे यहीं पे ठीक हैं। और मैं तो अम्मी अब्बू के साथ यहाँ पे बड़ा खुश हूँ। और अब तो कॉलेज भी हमारे घर के पास ही आ गया है। और आप ना भाई को जरा कम पटिया पढ़ाया करे जमीनें बेचने की। ਬੁੱਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਨੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ कर, समझदार बन। अम्मा समझदार हूँ, इसीलिए कह रही हूँ हमने नहीं बेचनी जमीनें। ये ताया जी का हाल देख लें, इनके बेटे भी भाई तरक्की करने गए थे, अब आगे पूछते भी नहीं है इनको। और वो जो अंकल शफीक हैं वो भी शहर शिफ्ट हो गए थे, अब ओल्ड होम में रहते हैं। जी जी जी, बड़ी ही लर्ज़ाखेज़ और दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं गांव से शहर जाने की। लोग तरक्की के लिए गांव से अपना सब कुछ बेच बाच कर शहर तो चले जाते हैं, लेकिन शहर की चकाचौंध रोशनी में अपने बड़ों को, अपने रिश्तों को, सब कुछ भुला बैठते हैं। वो बात ये है बहू जी कि देखें आप, गांव में जो जिंदगी है वो इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब शहर जाते हैं ये बहू लोग, जाके उधर अपना शहरी बाबू बनने की कोशिश करते हैं। जी जी। अखराजात इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि स्यापा बढ़ जाता है। वाह, बिल्कुल। अब उस स्यापे में पड़े हुए बच्चे फिर कहाँ अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं। बिल्कुल। और खुद भी उनका वहां पे सत्यानाश हो जाता है। भाई जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं होती, जिंदगी रिश्तों से होती है, क्या बात है। जिंदगी खानदान से होती है। वाह वाह, ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ਉਹ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦੇਣੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਭੱਠ ਪਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਓ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ करना। हाय, क्या खूबसूरत बात की है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? हाँ पेजा जी, सुनाओ ठीक हो? ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਆबिद? ठीक है फेट फेट कैसी जा रही है शहर की जिंदगी? बस ठीक है यार। मैं तो भाई डरदा शहर जांदा ही नहीं। क्यों? उत्थे कोलों गड्डी ही नहीं तेज लंघदी है कि लगदा हुणे तरू के नाल ले जाएगी। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਫੂਜ਼ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੁ ਕੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਖਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੂੰ ਖੌਫ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਰਵੋ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमें पका के खिला देते हैं। वाह, हुजूर कुछ तो अच्छा बनाते होंगे ये। हाँ जी, बनाते हैं जी, बेवकूफ। अच्छा जी, खान सामा एक ऐसा किरदार होता है जो अच्छा मिल जाए तो जिंदगी जन्नत, और अगर बुरा मिल जाए तो जिंदगी से दिल उचाट हो जाता है। ना जाने कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको खानसामा अच्छा मिल जाता है। हमें तो जो मिला ये आपके पास ले आए। क्या मतलब, आपको अच्छा खानसामा नहीं मिला? आपके सामने है, 2 दिन रख के देख लीजिए।
हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा इनके हाथ की कोई डिश खाई है? हमने खाई है, अच्छा इसीलिए तो जिंदगी से दिल उचाट हो गया है। कहाँ से लेकर आ गए ये खान साहब आप? ससुराल से मिला जी। शादी हुई तो बेगम साहिबा ने कहा कि यही हमारे खानदानी मुलाजिम हैं। अच्छा, हमने सोचा कि अच्छे ही होंगे। हाँ, इनके चचा थे जो पहले हमारे साथ आए शादी के बाद। फिर चचा जो थे उन्होंने कहा जी कि अब ये हमारा बच्चा आपके यहाँ आएगा। अच्छा 3 साल से जिंदगी उचाट हुई है। हाय हाय हाय। क्या नहीं पका के खिलाया साहब आपको? आप तो वैसे ही नाराज हुए रहते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमें पका के खिला देते हैं। हुजूर कुछ तो अच्छा बनाते होंगे ये। हाँ जी बनाते हैं जी, बेवकूफ। यकीन कर लीजिए कि जब भी मौसूफ को किसी मेहमान के आने का कहा है हाँ, तो पता नहीं नाराजगी की वजह से सारे खाने का सत्यानाश कर देते हैं। अकेले में तो बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मगर कुछ नाराज होते हैं जब सारे डाइनिंग टेबल का सत्यानाश कर देते हैं। नहीं मेरा मतलब है कोई तो डिश ऐसी होगी ना जो ये बहुत अच्छी बनाते होंगे। आपको बताया है बेवकूफ। मेरा तो ख्याल है शाह जी आपको एक और खान सामा रखना पड़ेगा जो इसको खिलाए पिलाए अच्छा और इसकी सेहत बने और फिर आपको ये पका के खिलाए। बेटा हमारा घर है, कोई हॉस्पिटल तो नहीं है ना, तो हम पहले इसकी सेहत ठीक करें। वाह। हाँ, मैंने तो एक दफा इनके चचा से कहा कि भाई खुदा रहा इनको ले जाइए, अच्छा इनको कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दीजिए। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि इनकी छुट्टी करवा दी जाए हाँ तो आपकी भावत जो हैं जी, वो सीधा मुंह पे ही कह देती हैं इसके साथ फिर आपकी भी छुट्टी होगी। लाडला बावर्ची है, लाडला। बहुत सख्त लाडला, आप देख नहीं रहे लाडले ही हैं तो मौसूफ बैठे हुए हैं। जी शाह जी जो आपके बराबर बैठ गया वो लाडला ही है। नहीं हम ऐसे आदमी नहीं है कि हमारे बराबर न बैठे। वाह। बैठे मगर यार कुछ करके तो बैठे। ऐसे बैठना तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई फारिग बैठा होता है। ऐसे डड्डू धूप सेक रहा है। ये भी कह सकते हैं, डड्डू जरा छोटा रखिएगा। आप जी मुझे एक बात बताएं, कब आपने मुझे कुछ बनाने को कहा है तो मैंने नहीं बना के दिया? रात के 1 बजे आप मुझे कहते हैं कि सूजी का हलवा बना के दें तो मैंने बना के दिया आपको। 3 साल हुए आपको हमारे पास आए हुए। इन 3 सालों में एक दफा अगर आपने रात को सूजी का हलवा हमें बना के दे दिया तो आपकी सीवी में छपवा दूं मैं आपको। शाह जी मुझे तो ये खुशी हुई है कि रात 1 बजे आपने सूजी का हलवा खाया। रात 1 बजे सूजी का हलवा या बहुत सेहतमंद आदमी खाता है या बहुत बेवकूफ आदमी खाता है। बात ये है कि हमें ये भी एतराज नहीं अच्छा, कि मौसूफ खाना जायके वाला नहीं बनाते। अच्छा क्योंकि आपको बताया कि जब मूड हो तो अच्छा बना देते, मूड नहीं होता तो फिर नहीं बनाते। नहीं ये तो घर में भी खातून खाना है यानी बीवी कभी खाना अच्छा बना देती है, कभी कभार अच्छा नहीं भी बनता है। हम माफी चाहते हैं, आप अब इनको हमारी बीवी के साथ तो ना मिलाएं। बीवी अगर अच्छा ना बनाए तो वो तो चलो समझ आती है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अगर अच्छा ना बनाए तो इनका कोई और फायदा है हमें? अच्छा शाह जी ये बताइए कि हमारी भाभी अच्छा क्या बनाती है? मुंह। किसी चीज पे अगर इनकार कर दूं तो ऐसा मुंह बनाती हैं कि अच्छा वाला खानसामा ऐसे भिंडी गोश्त नहीं बनाता। और जब वो मुंह बनाती हैं तो हमें शक होना शुरू हो जाता है कि ये वही खातून है जो हम बड़े चाव से ब्याह के लाए थे। ओ हुजूर मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाभी डिश कौन सी अच्छी बनाती हैं? डिश डिश डिश। अजी बताएं हमारी बाजी कौन सी डिश अच्छी बनाती है? भाई बताना यही तो चाह रहा हूँ कि बात ये है घर में कभी कुछ अच्छा भी बन जाता है कभी बुरा भी बन जाता जी हाँ, सही। है, मगर वो साफ पता भी चल जाता है कि ये मूड की वजह से खराब हुआ है।
ये दिल लगा के बनाया है इसलिए अच्छा बन गया है। वाह, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मौसूफ की तबीयत ना कर रही हो, नाराज हो, अच्छा, तो फिर हंडिया का भी सत्यानाश कर देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वैसा ही बना है जैसे पहला बनाया था। आपको तो खामखा वो जायका नहीं आता। ये कभी नहीं बताएंगे कि जितने ये सिगरेट पीते हैं इन्होंने तो अपनी जुबान का जायका ही खराब कर लिया है। अबे ओ जल कुक्कड़, इसे कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। यानी वो एतराज कर रहे हो जो तुम्हारी मालकन करती हैं। उनका तो चलो हक बनता है, तुम भी अब यही एतराज करोगे। भाई हमें ये भी एतराज नहीं कि कभी जायकेदार हांडिया बनती है या कभी नहीं बनती। नहीं शाह जी, मुझे तो इतराज है। क्या जी? ये आपको जायकेदार हांडी बना के नहीं खिलाता? मेरा ख्याल है इस चक्कर में है कि कभी हमें भी दावत दे। भाई ये ख्वाहिश दिल से निकाल दें, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं आपको भी पका के खिलाऊं। वाह जी वाह। वैसे गोगे जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है, तुमने तो जायके की बात करनी नहीं चाहिए। सर जी ये जायके पे तो इतराज करते हैं। इनसे पूछें कि कितनी मर्तबा इनको बोलता हूँ कि फलां 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 मसाला खत्म हुआ है, ला के दें, तो ये ला के देते हैं। बात तो ठीक है शाह जी, आप क्यों नहीं ला के देते उसको मसाला? भाई मौसूफ जब हमें कहते हैं ग्रॉसरी करते हुए कि ये चीज इतनी इतनी ले लीजिए, महीना गुजर जाएगा। अच्छा, जब हम इन्हें खरीद के दे देते हैं तो ये महीने की बजाय 10-12 दिन के बाद ही कह देते हैं जी फलां 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 चीज खत्म हो गई। शाह जी ये खानसा में जाते वक्त मसाले जेब में डाल के ले जाते हैं। आप देखिए। ओ गोगे क्या फजूल बात कर रहे हो? सर जी मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। क्या तुम मसाले जेब में डाल के ले जाते थे? नहीं सर जी, मेरा खान सामान ले जाता था मसाले जेब में डाल के। आपके पास खानसामा ही था या मजदूर रखा हुआ था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये गोगा तो किराए के मकान में रहता है, ये तो तोता नहीं रख सकता, ये खानसामा कहां से रखेगा? ओ यार एक मिनट ठहरो, शाह जी आप उसे मसाले तो पूरे ला के दिया करें, अंदाजा कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। ले दिए ले दिए ले दिए ले दिए भाई। अच्छा, अब ये देखिए कि मौसूफ को अगर कहा जाए ना कि 2 बजे पूरे खाना तैयार चाहिए, लंच के लिए आना है किसी फैमिली ने, अच्छा, आप 2 बजे का कहेंगे तो 3:45 से पहले आपको खाना नहीं मिलेगा। वाह, और अगर कहें तो कह देते हैं जी आपने डिशें भी तो इतनी बता दी। ओ मेरे बाप, आप डिशों को गोली मारो, जो पौना घंटा आप फोन कान के साथ लगा के अपने घर गांव में बात करते रहते हैं, वो भी क्या हमारे टाइम में ही आप गिनेंगे? शाह जी ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। आजकल घरों में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी का आधे से ज्यादा वक्त फोन पे बात करते हुए ना गुजारता हो। जी हाँ, मालकान जो है ना वो हाँ ना करके फोन बंद कर देते हैं। इनकी तो हाँ ना ही 3-3 घंटे की होती है। सही कह रहे हैं आप। यानी एक दफा मुझे मौसूफ कहते हैं कि मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि मैं फौरी तौर पे घर चला जाऊं। अच्छा, हमने कहीं जाना है, अच्छा, आप अगर इजाजत देते हैं तो मैं उसे बता देता हूं। मैंने कहा नहीं भाई, उसे ना कर दो। चले गए। 1.5 घंटे बाद मैं किचन में गया हूं तो अभी ना कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये घर जाने के लिए ना कर रहे हो या उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए ना कर रहे हो? एग्जैक्टली। ये जो मोबाइल कंपनियों से पैकेज मिल रहे हैं ना लोगों को, इन्होंने 80% लोगों के घरों से पतीलियों से दूध बाहर गिरा दिए। दूध चूल्हे पे रख के फोन कान पे रख के बैठे होते हैं। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी भाईजान कहते हैं कि भालू घर आ जाए तो दौलत बहुत आती है। यार वो तो तुम्हारे ससुराल वाले हमें तुम्हारा दिल रखने के लिए कहते हैं। वो भालू भालू इसको कहते हैं, लेकिन इसके पास टगा नहीं है।
अजीजी, आज कौन सी खबर लेकर आए हो? खबर तो आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 के पास बड़ी दिलचस्प है, मगर ये खबर सुन के आपको हल्की सी शर्मिंदगी भी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शरह खानदगी है, आई मीन लिटरेसी रेट जो है वो बड़ा वीक है, इसलिए हम इस खबर से हल्के से शर्मिंदा हो सकते हैं। खबर क्या है यार? कैलिफोर्निया के एक स्कूल में रीछ घुस आया। क्लासरूम में दाखिल हुआ तो स्कूल टीचर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। खातून टीचर एलन सालमन के शोहर ने आकर लोगों की मदद से रीछ को स्कूल से निकाला। खाली क्लास की आवारागर्दी करने और काफी देर बंद रहने के बाद रीछ ने भी फरार का रास्ता देखकर दौड़ लगा दी और जंगल में गायब हो गया। अच्छा यार, हमारे लिए इसमें क्या शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी ये है कि देखो ना जरा, अमेरिका के जानवरों में भी इल्म की भूख है। रिछ चला गया स्कूले, भी तो चला हमारे यहाँ गोगे को जब भूख लगी है ये किचन में ही गया है, उधर देखो रिछ को इल्म की भूख लगी और वो स्कूले जा बढ़ा है। यार, गोगा कभी खाली पेट वापस गया है? नहीं तो रिछ बेचारे को तो उन्होंने नहीं दाखला दिया, तो इसलिए वो चला गया, वरना लाइमन वो एवं तो नहीं ना क्लासरूम में भी घुसा। उसने जाके कहा होगा कि मैडम देख लवो, अगर मेरे सैज दा इत्थे कोई स्टूल है तो मैं भी बह जाना। वो तो फर्नीचर छोटा होने की वजह से रिछ को दाखला नहीं मिला। यार, क्या फजूल बात कर रहे हो। नहीं तो आप बताएं फिर रिछ क्यों स्कूले गया है? मैं कैसे बताऊं? मैं उसका मोहल्लेदार हूं। अगर आपको भी नहीं पता तो फिर किसको पता होना है? आप तो खुद अमेरिका में पढ़े हुए हैं। उस वक्त जब आप पढ़ते थे उस वक्त कभी किसी रिछ ने आपको पूछा नहीं है कि आपको कैसे एडमिशन मिला है? यार, मुझे रीच क्यों पूछेगा? मुझे मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन मिला। नहीं, मेरिट पे तो वो भी पूरा उतर रहा था, उस बेचारे के पास फीस नहीं थी। उसके वालिद साहब जंगल में शहद उतारने का काम करते हैं। अच्छा, तो उसने सोचा होगा कि शायद कहीं मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। ये रिच जो होता है ना, ये देखने में गुंडा लगता है, वैसे ये बड़ा इंटेलिजेंट इंसान होता है। वो इंसान नहीं होता भाई, जानवर होता है। यार चलो एक तरह का इंसान ही कह दो, एवं तो नहीं ना वो बेचारा इल्म की रोशनी और शऊर हासिल करने के लिए स्कूले गया। उस बेचारे ने टीचर को आख्या भी होगा कि मैडम देख ले प्लीज, मुझे दाखला दे दे। देखना यार, मैं एवं नहीं वाल इन्हें बधा के फिर रहा, मैं अनपढ़ हूं इसलिए मुझे अकल नहीं आ रही। इधर से मैं मैट्रिक कर लूंगा, कटिंग शटिंग करा के फिरा करूंगा, मुझे अकल आ जाएगी कि किस तरह फिरते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। नहीं अजीजी, सही कह रहा है फरीद साहब, ये रिछों के बड़े करीब है। हाँ, ये लाहौर में जो चिड़ियाघर नहीं है, उसमें जो रीछ है, जीजी उसे मिलने जाता है बड़ी दफा। ये देखो देखो, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये लड़का। मैं तो अक्सर जाता हूँ वहाँ चाचे रिच को मिलने के लिए, और वो बेचारा मेरे साथ बड़े दुख सुख बोलता है। अच्छा, मुझे तो लगता है इस रिच को भी कोई दुख ही ले गया स्कूले। हो सकता है इसके ससुराल वालों ने कहा हो कि साडी कुड़ी ने बीए कीता ते तैनू काले अनपढ़ नू किथे रिश्ता दे दई। और यार, काला अनपढ़ नहीं होता, चिट्टा अनपढ़ होता है। यार वो काला रिच है तो काला अनपढ़ ही होगा ना। चिट्टा रिच बर्फानी रिच होता है। वो बेचारा मेरा ख्याल रिश्ते के चक्कर में स्कूले दाखिल होने गया, देखो ना टीचर ने उन्होंने कमरे च बंद कर दिया। वो बेचारा परेशान हो गया होगा, ले दाखिला मिले नहीं तो फैंटी पहले ही शुरू हो गई। इधर पाकिस्तान में अगर कोई रिच घुसता ना स्कूल में, उसने दाखिल हो जाना था, क्योंकि बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार। रिच ने कहना सी दिस स्कूल इज गुड। इंतहाई लायानी सी गुफ्तगू कर रहे हो। तुम्हें मालूम है वहां पे इंसान को कोई हक ही नहीं है कि वो जानवर को हाथ लगा सके या इस तरीके से उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। यही वजह है कि वहां पे बहुत सारे जानवर शहरों का रुख कर लेते हैं। जी। ये कनाडा में, अमेरिका में रीछ अक्सर आबादी की तरफ आ जाते हैं।
वैसे तो अक्सर जानवर इन आबादियों की तरफ आते हैं। मई की एक खबर थी, जी जी। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक स्कूल की सुबह की असेंबली के दौरान एक सांप पहुंच गया। हाँ जी, बच्चे सारे असेंबली च खलोते ने, उसे आगे नाल सप भी खलो गया। बच्चों ने सांप को देखा तो दौड़े लग गई थी। वो तो भला हो सिक्योरिटी गार्ड का, उसने सांप पकड़ा और उसने सांप को पकड़ के स्कूल से बाहर छोड़ा। उधर वाकफ होना है, उन्हें क्या होना कि इधर आ जाए यार ना। इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं। ये 2 महीने पहले फ्लोरिडा में एक घर में मगरमच्छ घुस आया। दरवाजे पर आवाज सुनी तो खातून पता करने गई कि यार कोई आया है, देखूं तो सही कि कौन है। मेहमान शमान होगा। जैसी लॉन्ज में दाखिल हुई तो देखा है कितना बड़ा मगरमच्छ है। वो देख के खातून सकते में आ गई, फौरन से 911 को कॉल की। 911 वाले आए और फिर इस मगरमच्छ को पकड़ कर ले गए। ये तो वो 911 पे फोन ना भी करती, मगरमच्छ को सीधा कह देती ना जी जिन्ना साडे कोल गोश्त सी असीं पका लिए है। पका हुआ गोश्त नहीं खाता मगरमच्छ। अच्छा, हाँ जी, ओनू अगर पता लग जाता कि इन्हां दे घर कच्चा गोश्त ही नहीं आ, उन्हें चला जाना सी। तो जीजी अगर मगरमच्छ ये कह देता कि गोश्त तुझे सारा पका लिया है, हुण तुसी इधर आ जाओ। यू आर राइट। बड़ा बड़ा खतरनाक जानवर घुस जाता है इन लोगों के घरों में। बिल्कुल। ये 1-1.5 हफ्ता पहले न्यूयॉर्क में एक शख्स के घर में अजदहा घुस गया और वो इतना बड़ा था, 4 मीटर लंबा था। अच्छा। हाँ, और उसका वजन को 1 मन के करीब था। उसने भी जब देखा इतना तगड़ा आ गया अजदहा, उसने फटाफट 911 पे फोन किया, यार क्या भाई जी साडे घर एक बदमाश वाड़ आया, छेती आओ। यार जीजी ऑस्ट्रेलिया में टेनिस मैच के दौरान कोर्ट में सांप घुसाया था। हल्की हल्की वॉक करता हुआ वो अंदर आ गया। ना उसके पास टिकट थी ना उसके पास रैकेट था। एवं फजूल ही दूजिया का भी टाइम ही आया करना। 40 मिनट मैच रुका रहा वो, फिर वो आके सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा। देखो ना यार, है तू सापे ना तेरा हाथ थे ना तेरिया लत्तां ने, भाई तू इंज किथे टेनिस खेडना है। ये रिच की हुई एक और खबर थी, अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में भूख से नडाल एक भालू जो है वो घर में घुस गया और वो सारे घर वाले एकदम पहले तो डर गए। उसके बाद वो उस वक्त मुतमईन हुए जब उसने उनके पास जो परिंदे रखे हुए थे ना, वो रिच ने उनका दाना खाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी फटाफट फोटो में बनानी शुरू कर दिया। वो बाद में उन्होंने कहा कि हैं असी की करन लग पे दाना शाना खा के तस्वीर उतरवा के बाहर निकल गया आराम। शुक्र है उन्हें किधरे फोटो सेशन के पैसे नहीं मांग ले। वो घर वाले कहते हैं हमें तो बड़ा शौक था कि हम जंगल में जाके तो भालू देखें। तो ये तो हमारे घर ही आ गया, हम पहले इसकी तस्वीरें तो बनाएं। अजीजी भाईजान कहते हैं कि भालू घर आ जाए तो दौलत बहुत आती है। यार वो तो तुम्हारे ससुराल वाले हमें तुम्हारा दिल रखने के लिए कहते हैं। वो भालू भालू इसको कहते हैं, लेकिन इसके पास टगा नहीं है। अच्छा, मैं वैसे ये अमेरिकन स्कूल में रिच के घुसने की खबर पढ़ के सोच रहा था कि हमारे पाकिस्तानी स्कूलों में भी जानवर घुस आते हैं। अच्छा जी। बल्कि मुस्तकिल रिहायश पजीर होते हैं। किसी स्कूल में चौधरी की भैंसें बांधी होती, किसी स्कूल में वडेरे की बकरियां चल रही होती, किसी स्कूल में आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं कि कौन कौन है अंदर। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हुआ ये है कि जब मैं चैनल में घुसा हूं और बाहर ये लॉबी में गोगा इंग्लिश मैगजीन वालों को इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा जी, फरीद सियाना साहब। होल्ड प्लीज अजीजी, होल्ड प्लीज। जी जी, पीरजादा साहब हुक्म करें। मैं पीरजादा नहीं मीरजादा हूं। लेकिन प्लीज रुकें जरा, मैं बात करना चाहता हूं। अच्छा जी। फरीद साहब जी, आप इस प्रोग्राम के एंकर हैं, इस प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं आप जी। अब ये फांसी फैलाई जाएगी यहाँ, ये बदतहजीबी देखने को मिलेगी। और साहब क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ तो बताइए। हुआ ये है कि जब मैं चैनल में घुसा हूं और बाहर ये लॉबी में गोगा इंग्लिश मैगजीन वालों को इंटरव्यू दे रहा था। क्या बात है, मैं डर ही गया हूं, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है।
तो यार ये इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू देना फहाशी है जी? हाँ फांसी है। गोगा अगर इंग्लिश मैगजीन वालों को इंटरव्यू देगा तो ये फांसी है। ऐसे लोग तो इंग्लिश मैगजीन में सिर्फ तस्वीरें ढूंढते हैं। वैसे गोगे, जी वो तुम्हें शर्म नहीं आई? किस बात की? वो इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए? वो तुम्हें इंटरव्यू के स्पेलिंग नहीं आते और तुम इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे हो? ये जेलसी है, जेलसी। वो खुद मेरे पास आए, 2-3 माह से मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो देते क्यों नहीं उनके पैसे तुम? अब भाई पैसों की बात नहीं है, वो मुझसे इंटरव्यू मांग रहे थे और मैंने उनको कहा कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकता। उन्होंने कहा आप उर्दू पंजाबी बोलते रहें, हम इंग्लिश लिखते रहेंगे। वाह। अब अगर एक बंदा खुद जिम्मेदारी ले रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये जिम्मेदारी तो उसने ले ली, मगर मैं ये सोच रहा हूँ उस वक्त का कि उसका फिर हशर क्या हुआ होगा। क्योंकि तुम जब इंटरव्यू देते हो या अपने मुतल्लक गुफ्तगू करते हो तो हर दूसरे फिक्रे में तो स्यापा आता है। मैं घर से निकला तो राह में स्यापा पड़ गया, मैं थिएटर पहुंचा तो जाते ही स्यापा पड़ गया, मैं ड्रामा कर रहा था तो एक नवा स्यापा पड़ गया। तो उन्होंने स्यापे की इंग्लिश क्या लिखी होगी? ओ यार अजीजी, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम। स्यापे की अंग्रेजी क्यों नहीं होती है? यानी ट्रबल लिख सकते हैं, चैलेंजेस लिख सकते हैं और बहुत सारे अल्फाज हैं अंग्रेजी में जो स्यापे का अहाता करते हैं। चलो ठीक है, लिख लिया जी उन्होंने स्यापा इंग्लिश में। और ये जो हर दूसरी बात के बाद कहता है कि उसके बाद मुझे भूख के साथ ढिड में मरोड़ उठने शुरू हो गए। ये मरोड़ की इंग्लिश क्या होगी जी? ट्विस्ट। ओ अजीजी, ये मैगजीन वाले जाने या गोगा जाने, तुम्हें क्या मुसीबत है? यार मुझे कोई मुसीबत नहीं है, मगर एक टेंशन तो है ना। हमें तो नहीं ना गौरी ने बात की, शुरू से ही उसने जो होल्ड प्लीज कहा मैं उधर से ही समझ गया था क्या गौरी हाँ मैं नहीं बात करता। बात तो वाकई फिक्र वाली है ना कि गोगा इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू दे बैठा। अब तो वो ले गए इंटरव्यू, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो बता रहे हैं ना फरीद साहब को कि फोन शोन करके तो वापस मंगवा ले इंटरव्यू। यू मीन होल्ड करा ले इंटरव्यू को? हाँ जी, होल्ड करा लो, बल्कि खुद देख लो। अब स्यापा, मरोड़, न्याज, लंगर, वो सारा कुछ निकलवा लें, वरना ईमान से अंग्रेजी उनकी खराब हो जाएगी। मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूँ कि मोहल्ले में बच्चे जो पानी वाला शापर मारते हैं गोगे को, उनकी इंग्लिश उन्होंने क्या लिखी होगी। यार तुम्हें क्या तकलीफ है? शापर तो पहले ही इंग्लिश का लफ्ज है, सिर्फ पानी की इंग्लिश करनी है ना, दैट्स इट। चलो हो गया। पानी वाले शापर की भी इंग्लिश कर ली उन्होंने। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? बालो कुड़ियो चीज वंडी दी लई जाओ। क्योंकि ये चीज भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत है। यार उन्होंने कोई ट्रांसलेटर रखे होंगे जो चीज वंडी की इंग्लिश करेंगे। और ट्रांसलेटर, वो तुम वीजा लगवाने गए थे या इंटरव्यू देने गए थे? उन्होंने देखना तुम्हारी ट्रांसलेटर के ऊपर ट्रांसफार्मर लिख देना। चलो अजीजी हो गया, ये भी हो गया। चीज मंडी दी ले जाओ, इसकी भी इंग्लिश हो गई। और ये जो तुम 4-4 दफा जाके कहते हो मेरे भरा दा वीसा दो, मेरे भरा दा वीसा दो, इसका क्या होगा? यार इसकी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। प्लीज गिव मी पार्ट ऑफ माय ब्रदर। वो तेरा बेड़ा तर जाए। लो जी गल वध गई जी। ओ फरीद सियाना साहब जनाब, ओ मैगजीन वालियां नूं फोन करो, ओ वापस बुलाओ उन्होंने, इन्हें अमरीका भी लंगर लैन टुर जाना। वो अज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो उथे डॉलर मंगन गए, इन्हें पिछों लंगर मंगन लग पे। यार ना घबराएं, ये सिर्फ इंटरव्यू ही था। नहीं तो इंटरव्यू तुम्हारा लिया क्यों है? क्या तुम समंदर में डूबते डूबते बचे हो या उड़ते हुए जहाज से नीचे गिरे और उठ के चलने लग गए हो? या एक हफ्ता बगैर खाए पिए रहे हो? और यार मैं फन की बुलंदियों पे उड़ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। ऐसे उठ सकते हो तुम फन की बुलंदियों पर? तुम्हें तो हाइट फोबिया है।
ओ माय गुडनेस, अल्लाह किसी गरीब को स्टार भी ना बनाए। फरीद साहब, जो मैगजीन वालों के साथ लेडी रिपोर्टर थी ना, वो बार बार मुझे कह रही थी आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैगजीन वालों ने एक बंदा तवा लगाने के लिए रखा होता है ना। और भाई तवे, वो तवा नहीं लगा रही थी, उसकी आंखों में मैंने खुद देखा है मोहब्बत झलक रही थी। ओ माय गॉड, चलो जी फिर ले लो वो ब्रेक होना अल्लाह वारस। तो यार एक मिनट ठहरो जरा। गोगे ये बताओ, कोई तस्वीरें वगैरह भी खींची या सिर्फ इंटरव्यू ही लेके गए हैं? हाँ। फोटोशूट अभी है संडे वाले दिन। अल्लाह, क्या हुआ अजीजी, बैठो सही अजीजी। और इजी इसको पता नहीं कि संडे वाले दिन वो फोटो शूट करते हैं और मंडे वाले दिन वो शूट कर देते हैं। फरीद साहब प्लीज इसका फोटोशूट 32 बोर कैमरे से करवाओ। तो यार एक मिनट गोगे जी, ये बताओ कि फोटोशूट है कब? नेक्स्ट संडे का कह रहे हैं। हाँ। अभी उन्होंने लोकेशनें मार्क करनी है। अजी या तो ये 5-6 महीने शान के साथ फिरता रहा है या माइयों सईद के साथ रहा है। ऐनियां गल्लां खुद कर नहीं सकता। अल्लाह करे वो ऐसी लोकेशन ढूंढे जहां इसको ले जाकर ऊपर से धक्का दे दे। गौरी भाई, वो मुझे किसी आबशार पे ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, और साथ साबन लेके जाएंगे और इसे कहेंगे जाके कि अल्लाह दा वास्ता ही नाल है। वैसे यार इंतहाई फजूल बात है। अगर किसी इंग्लिश मैगजीन ने गोगे का इंटरव्यू कर ही लिया है तो आप लोगों को इतनी क्यों जेलसी है? और यार नहीं, जेलसी नहीं है, हम ये फिक्रमंद हैं कि कहीं हस्बे हाल का वकार ना मजरू हो। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं, लेकिन जब दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी जाए तो फिर सरासर खसारा है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।